Hello everyone, today we are going to solve few questions related to the chapter lines and angles, and I am going to deliver you the concepts related to the same. So let's start. Okay, the first question is ABCD is a quadrilateral, AB equals to AD and BC equals to CD. So we need to draw a quadrilateral having four sides AB, CD, AD and BC. Okay, so let's start. Okay, so this is a quadrilateral having four sides. Okay, so I'm going to name it as A, B, C and D. And as you can see, we have AB equals to AD. So this is equals to this. It is given in the question. And BC equals to CD. So this is equals to this. According to question, these sides are equal. Then what else we have? Angle BAD equals to angle BDC. Angle BAD, this angle is equal to angle BDC. I need to draw BD to get angle BDC. So angle BDC is this. They both are equal in measurement and their measure is 20 degrees. Okay, fine. Now what else? The measure of the angles ABC, BCD and CDA. So we need to find these three angles. So what we are going to do is, we will start with the two triangles in the quadrilateral. First of all, in triangle BCD, we have BC equals to CD. And also, as you know that angles opposite to equal sides are equal. Okay, so what we have is angle BDC is equal to angle DBC. This angle will have equal measurement as of BDC. So we can say that angle DBC is equal to angle BDC. Angles opposite to equal sides are equal. Okay, so now what is the measurement of this angle? It will also become 20 degrees. Fine. Now talking about the remaining, the third angle is BCD, or we can call it as angle C. Now to find angle C, we can apply the basic method of the sum of the angles of a triangle. Okay, so now in triangle BCD, the sum of the angles of the triangle will be 180 degrees. Okay, so angle C will be equal to angle C plus these two angles, angle DBC plus angle BDC equals to 180 degrees according to angle sum property. Angle sum property of triangle. So angle C is equals to 180 degree minus 20 degree plus 20 degree, and this is equals to 180 minus 40, and that is 140 degrees. So the measurement of angle C is 140 degrees. Fine. Now talking about the another triangle, here we have is ADB. In triangle ADB, you have AB equals to AD. AD equals to AB. And talking about the same method as you applied in the earlier triangle, angles opposite to equal sides are equal. Therefore, what we have is the measurement of this angle will be equal to this angle. Okay, so angle ABD is equal to angle BDA. Okay, and now using the angle sum property of a triangle, if I name it as X, this will also become X. So let us call these as X. Okay. So by applying the angle sum property of triangle, 20 degrees plus X equals to 180 degrees. Okay. So we can say that the measurement of angle X equals to 180 minus 20, that is 160, divided by 2, that is equals to 80 degrees. So here you have angle X equals to 80 degrees.
Okay, so now in this question they were asking us about angles ABC. Where is angle ABC? Here. So the measurement of angle ABC is 80 plus 20, that is 100 degrees. Measurement of angle BCD is 140 degrees. Measurement of angle CDA is 80 plus 20, that is 100 degrees. So which one is the right option? 100, 140 and 100. So we have the A option. Okay, fine. Let's move to the next question. Next question. ABCD is a rectangle in which AB equals to 20 centimeter. The measurement of AB is given to us, that is 20 centimeters. And BC equals to 10 centimeters. Okay. And also in a rectangle, you know that the opposite sides are of equal measurement. So we can say that DC is also equal to 20 centimeter. Okay. Also, AD is equals to 10 centimeter. आप लोगों को बेटा पहले से पता है कि रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, हमारे पास ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. ओके, नेक्स्ट, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABE इज ड्रॉन हियर. इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है ABE, यानी कि AB साइड के ऊपर हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया है. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स व्हाट? अ ट्राइंगल हैविंग all the three sides equal is known as an equilateral triangle. It means AB equals to AE equals to BE is equals to 20 centimeters, because we know that AB is 20 centimeter. This will give us AE equals to BE equals to 20 centimeters. Okay, fine. Now next is drawn. M is the midpoint of BE. M is the midpoint of BE. If M is the midpoint of BE, then tell me the measurement of BM. BM will be equals to ME and बेटा ध्यान से देखो, BE जो था, BE पर 20 सेंटीमीटर्स है और आपने बोल दिया M जो है मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट मतलब एकदम सेंटर में लाई करेगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? BM इक्वल्स टू MB. ठीक है, और मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर्स. फाइन, यहाँ तक तो ठीक है. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? एंगल CMB. हमें CMB का मेजरमेंट निकालना है, यानी कि इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड दिस एंगल CMB. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. हमने वैसे काफी कुछ इसमें पहले से अभी कर लिया, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमने काफी इसको सॉल्व कर लिया. ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर हमें दिया हुआ है BM जो है, मैंने अभी निकाला जस्ट, ये भी 10 सेंटीमीटर है. ठीक है ना, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये भी 10 सेंटीमीटर है. आप ये बताइए बेटा BM इक्वल्स टू BC नहीं आ गया क्या? आ गया. ठीक है, एंड इन ट्राइंगल BMC वी हैव BM इक्वल्स टू BC. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, therefore angle BMC will be equals to angle BCM, and we can call these angles as X. Let us call these angles as X. Fine. Now talking about the angles of the rectangle. एक रेक्टेंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट क्या होता है बेटा? सबका मेजरमेंट 90 डिग्रीज होता है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एंगल B की बात करूँ तो ये 90 डिग्रीज का मेजरमेंट होगा. ठीक है, आपको पता है 90 डिग्री को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ऐसे बना हुआ है 90 डिग्री तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नोन एज 90 डिग्रीज. ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ नेक्स्ट देखो, उसके बाद में क्या है, हमें ये भी तो पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट कितना होता है? 60 डिग्रीज. ठीक है, तो अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूँ AEB, इसके अंदर जो हमारा मेजरमेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये तो हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल है, ये 60 डिग्रीज है हमारे पास. ठीक है, कंप्लीट 90 है, ये 60 है, तो बेटा ये बताओ रिमेनिंग एंगल कितना आया? 30. 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्रीज. ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री आ गया. नाउ इन ट्राइंगल BMC, अगर हम ट्राइंगल BMC की बात करते हैं, देखो इन ट्राइंगल BMC, by applying the angle sum property of the triangle, we can say that X plus X plus 30 degrees equals to 20 degree. Angle sum property of triangle. Fine. So the measurement of X equals to 180 minus 30, that is 150 degrees, divided by 2.
and you will get the answer 75 degrees. फाइन, तो बेटा हमें x की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 75 डिग्रीज. क्या यही रिक्वायर्ड थी? यस एग्जैक्टली, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी. हमें फाइंड करना था एंगल CMB जिसको कि हमने x नेम दे दिया था. ठीक है, सो आवर फाइनल आंसर इज 75 डिग्रीज. फाइन, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. Look at the board. The next question is, in the diagram ABCD is a quadrilateral. आपको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD एक quadrilateral है. Quadrilateral क्या होता है? 4 साइड वाला पॉलीगन. ठीक है, a polygon having 4 sides is known as quadrilateral. एंगल ABC का मेजरमेंट दिया हुआ है इसके अंदर आपको, ABC this, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है 150 डिग्रीज. फाइन, नेक्स्ट व्हाट डू यू हैव? DAB इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एंगल ABC. ठीक है, हमें बोल रहे हैं एंगल जो है DAB जो है आपके पास में वो 1/3 है. 1/3 किसके? ABC के. तो बेटा ABC का मेजरमेंट यहाँ लिख देते हैं हम लोग. ठीक है, 1/3 है, कैंसलेशन करो, क्या आंसर आएगा? 50 डिग्रीज. DAB का वैल्यू आ गया 50 डिग्री. DAB दिस इज 50 डिग्रीज. ओके, नाउ नेक्स्ट एंगल BCD को 60 डिग्री. BCD का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्रीज. क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास पहले से. ठीक है, ये दिया हुआ है. देन आपको ADP पूछा है एंड APD पूछा है. ADP यानी कि हमारे पास कौन सा एंगल? ये वाला पूछा है इन्होंने. और APD यानी कि ये वाला. इसका मतलब जो दो एंगल हमें इस फिगर में लग रहा था, जो दो एंगल्स नहीं गिवन है वो दो एंगल इन लोगों ने हमसे पूछ लिए. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करने हैं, इनका मेजरमेंट निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो बेटा इसके अंदर मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइड वाला पॉलीगन. अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स नोन एज क्वाड्रिलेटरल. तो इसके अंदर हमें जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन. उसकी हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है. तो हम कैसे निकालते हैं सम? तो देखो बेटा मैं आपको बताती हूँ कि आप एक कन्वेक्स पॉलीगन का जो है, कन्वेक्स पॉलीगन का मतलब क्या होता है? अ पॉलीगन हैविंग ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज कन्वेक्स पॉलीगन. ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन का मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो सबके सब 180 डिग्री से छोटे हों, उसको हम बुलाते हैं कन्वेक्स पॉलीगन. और कन्वेक्स पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला है हमारे पास में. तो बेटा मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ. देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन is equals to 2n-4 multiplied by right angle that is 90 डिग्री. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है बेटा 2n-4 इंटू 90 डिग्रीज. ये फॉर्मूला है हमारे पास में किसके लिए? सारे जो इंटीरियर एंगल्स है कन्वेक्स पॉलीगन के अंदर उसके सम के लिए. ठीक है, अब बोलेंगे मैम n क्या है? हियर n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन. पॉलीगन की जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उसको हम n बुलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर बेटा n की वैल्यू क्या होती है? 3. तो 3 वहाँ पुट करके देखो, तो देखो यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या आएगा? देखो 2 इंटू 3 यानी कि 6 माइनस 4 इंटू 90 डिग्रीज. ठीक है, तो क्या आंसर है? 2 इंटू 90 दैट इज 180. और मैंने आपको बताया था एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल that states that the sum of all the 3 angles of the triangle is 20 degree. Hence proved. ठीक है, और हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके भी देख लेते हैं. ठीक है, अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करती हूँ तो देखो मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर. और क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने क्या बोला? इसकी जो साइड्स होती हैं कितनी होती है बेटा? 1 2 3 4 n इक्वल्स टू 4. ठीक है, 4 पुट करके देखते हैं, इसका सम कितना आएगा? सम इक्वल्स टू 2n यानी कि 4 टू 8 minus 4 multiplied by 90 degrees that is equals to 4 into 90 and that is equals to 360 degrees. तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि sum of the interior angles of a quadrilateral is equals to 360 degrees. यानी कि quadrilateral के सारे interior angles का sum क्या होता है? 360 डिग्री.
ठीक है। तो बेटा इस कंसेप्ट को हम यूज करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें जो मिला है पूरा क्वाड्रिलेटरल, उसका नाम है ABCD। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसके अंदर सारे एंगल्स का सम क्या होगा 360। हमारे पास बेटा 3 एंगल्स पहले से हैं, सिर्फ एंगल D नहीं है, तो हम लिख सकते हैं एंगल D प्लस 50 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज प्लस 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 360। इन सब का सम कर लीजिए बेटा, ठीक है। इनका सम करेंगे तो 150 260 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल D इज इक्वल्स टू 360 माइनस 260 and that is equals to 100 degrees। तो हमें यहाँ से एंगल D का मेजरमेंट मिल गया है which is 100 degrees। फाइन। तो ये हमारा एंगल ADP जो है हमारे पास में वो आ गया हमारा 100 डिग्रीज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है। वी नीड टू फाइंड एंगल APD। बेटा अब तो आपको काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा, APD जो है वो एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं in triangle APD, by applying the angle sum property of the triangle, angle A plus angle D plus angle P is equals to 180 degrees. Therefore 50 degree plus the measurement of angle D is 100 degrees plus angle P equals to 90 degrees. Therefore angle P equals to 180 minus 150 and that is equals to 30 degrees. Therefore, the measurement of APD is 30 degrees. Now, which option is correct? 100 and 30 degrees. Option A is the correct answer. Okay, bachcho? Let's move on to the another question. So, what do we have in this question? The points A, B, C and D are marked on a line I as shown in the figure। एक लाइन आपको दी गई बेटा I and ABCD आपको 4 पॉइंट्स मार्क करके दे दिए गए हैं, ठीक है। AC equals to 12 centimeters, BD 17, AD 22 and then we need to find the ratio of AB to CD, ठीक है। यानी कि हमें AB और CD का रेशियो निकालना है। तो देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले AC को मार्क कर लेते हैं हम लोग, AC यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। देखो तो हमें अगर मैं इसको A बोल दूं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। मैंने खुद के इच्छा से एक बार 4 पॉइंट्स मार्क कर लिए। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है AC पूरा दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको दिया हुआ है पूरा 12 सेंटीमीटर्स, फाइन। एंड BD आपको दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर्स, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 17 सेंटीमीटर्स, फाइन। एंड AD 22 सेंटीमीटर्स, AD यानी कि कंप्लीट यहाँ से लेकर के कंप्लीट यहाँ तक का आपको मेजरमेंट दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर्स, ठीक है बच्चों। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 मेजरमेंट्स गिवन है। तो अगर ये बताओ बेटा आपको कॉमन दिख रहा होगा ना कुछ, सब तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है क्या, BC तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, लेट अस सपोज कि जो BC है उसका लेंथ कितना है x सेंटीमीटर्स, हमने उसको x सेंटीमीटर मार्क कर दिया BC को, ठीक है। अगर मैं BC को x सेंटीमीटर्स मार्क कर देती हूँ, ठीक है, और फिर मैं AC प्लस BD करती हूँ, ठीक है बेटा ध्यान दो। अगर मैं BC को x मार्क कर देती हूँ और मैं यहाँ पर AC प्लस BD कर रही हूँ, तो AC प्लस अगर हम BD कर रहे हैं तो देखो इसके अंदर क्या आएगा, अब यहाँ पर AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD, क्या यही होगा। AC का मतलब है AB प्लस BC एंड BD का मतलब है हमारे पास में BC प्लस CD, फाइन। अगर मैं इसके अंदर से सोचूं कि मैं AB, BC और CD ले लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं इन तीनों को ले लेती हूँ तो क्या ये हमारा AD बन रहा है क्या, यस, क्योंकि AD क्या है हमारे पास में, AD इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD, यही तो है हमारे पास में AD। तो AD का वैल्यू इन तीनों को ऐड करके बन रहा है, तो मैं AB प्लस BC प्लस CD की जगह क्या AD लिख सकती हूँ, यस। तो हम इसको लिख सकते हैं AD प्लस BC, ठीक है। और यहाँ पर क्या था लेफ्ट हैंड साइड में AC प्लस BD, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं,
वैल्यू सारी की सारी जो हमारे पास है, AC की वैल्यू है हमारे पास में, इसमें हम इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। तो देखो आप लोग वैल्यूज पुट करने से क्या आंसर आ रहा है, AC इक्वल्स टू 12 प्लस 17 इक्वल्स टू 22 प्लस x, हमने BC को x माना था, ठीक है, और सब सेंटीमीटर में हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बन गया 29 माइनस 22 इक्वल्स टू x, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स। x आपका 7 आ गया, यानी कि आपको BC की क्या वैल्यू मिल गई बेटा, BC की आपको वैल्यू मिल गई है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है, BC मिल गया हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो अगर हमें BC मिल गया, लेकिन क्या क्वेश्चन हमसे BC पूछा था क्या, नो, AB अपॉन CD, क्या अब आप AB निकाल सकते हैं, AB का वैल्यू क्या होगा, AC माइनस BC, AB इक्वल्स टू AC माइनस BC, 12 minus 7 that is equals to 5 centimeters. And talking about CD, CD का वैल्यू होगा BD minus BC, आप BD में से BC निकाल दीजिए, 17 minus 7 that is equals to 10 centimeters. और आपसे इनका रेशियो पूछा है, it means AB upon CD, यानी कि 5 upon 10 this is equals to 5 upon 10 that is equals to 1 upon 2, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, इन द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ x इज, इन्होंने हमसे यहाँ पे पूछा है x की वैल्यू, और x क्या है, ये वाला एंगल, इस एंगल की वैल्यू इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछी है, ये हमें निकालना है, वी नीड टू फाइंड दिस आउट, ठीक है। तो चलो, इसमें बेटा इन्होंने सब लाइंस बनाई हैं, तो इनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो लाइंस एक्सटेंड करे बिना तो बेटा कोई भी परफेक्ट ट्राइंगल, कोई परफेक्ट फिगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है। जब आप लाइंस एक्सटेंड करेंगे तो आपको कोई परफेक्ट फिगर मिलेगा जिसको कि आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, लाइंस को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर दूं, देखो ऐसे, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद में हम बोल देते हैं ए बी एंड विल नेम दिस पॉइंट एज सी, ठीक है, इसको हमने सी नेम दे दिया बेटा, ए बी सी, दिस इज डी, दिस इज ई, ओके फाइन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले देखो, मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि मैं x के सबसे पास में देखती हूँ ताकि मैं उसके और पास ही पहुंचूं उसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पास में मुझे 140 नजर आ रहा है, एंड 140 इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल ABC। ABC के लिए वो एक क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ठीक है, और क्या है, और क्या आप इससे हमें ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्या, साइड में जो हमारे पास एंगल है, आप क्या इस एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं, यस, एंगल ABC एंड 140 डिग्रीज वाला एंगल, दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल ABC का मेजरमेंट क्या होगा, एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 140 डिग्री, सिंस वहां पे क्या था, लीनियर पेयर था, लीनियर पेयर किसका था, ये वाला एंगल का और इस एंगल का, इन दोनों का लीनियर पेयर बन रहा था। तो ABC का मेजरमेंट कितना हो गया हमारे पास में, 40 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका मेजरमेंट 40 डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमारे पास क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यानी कि इन दोनों का सम बन रहा होगा, ठीक है। और हम ये भी देख सकते हैं कि 130 भी तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये किसका सम होगा, ये होगा इसका और इसका सम, ठीक है। तो हम किसी भी तरीके से एंगल C के पास पहुंच सकते हैं, ACB के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं जो A के ऊपर है, ठीक है। तो 130 डिग्रीज इज इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB, क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा हमें यहाँ से, हमारे पास अभी जस्ट हमने ABC का वैल्यू निकाला था, तो हम यहाँ से एंगल ACB का वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड एंगल ACB इक्वल्स टू 130 माइनस एंगल ABC, तो 130 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज, एंड दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज,
तो हमें क्या मिल गया यहाँ से बेटा, एंगल ACB का मेजरमेंट। वी हैव एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अगर ये 90 डिग्री तो बेटा ये वाला कितना होगा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, हमें यहाँ पे दोनों, यहाँ पे दो एंगल्स मिल गए, दोनों 90 डिग्रीज। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें कि मुझे x जो है, x के लिए अभी भी मेरे को वैल्यू सारी नहीं मिली है। ठीक है, तो मैं एक और काम क्या कर सकती हूँ, हमें यहाँ पर दिख रहा है लीनियर पेयर, ये एंगल और ये एंगल मेरे को लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू ऐड करके 180 बनेगी। इट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। ठीक है, ये वाला एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 डिग्रीज। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास जो ट्राइंगल है ECD, ट्राइंगल ECD, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, x इक्वल्स टू एंगल ECD प्लस एंगल CDE। ओके, ठीक है, ये क्यों होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, the exterior angle is equals to the sum of two interior opposite angle। ये हमारे पास यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और इसके लिए सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज एंड x इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। लेट्स चेक द ऑप्शंस। ऑप्शन C is correct. Okay, moving on to the next question. Aruna has a piece of cloth measuring 128 centimeter by 72 centimeters. She wants to cut it into pieces of squares. The greatest possible size of the square that she can cut is. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि उसके पास एक क्लॉथ का पीस है। ठीक है, एक कपड़े का टुकड़ा है और उसका मेजरमेंट क्या है 128 बाई 72 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई है और अब बोला इसको छोटे छोटे उसको टुकड़े में कट करना है। ठीक है, स्मॉल उसको पीसेस में कट करना चाहती है। जो स्मॉल पीसेस हैं उनको वो स्क्वायर का शेप देना चाहती है। ठीक है, स्क्वायर मतलब जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो अगर आपके पास में एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के हमें क्या क्या दिए हुए हैं, 128 उसकी लेंथ दी हुई है और ब्रेड्थ दी हुई है 72 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और इसके अंदर हमसे बोला गया है कि उनको छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाने हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक छोटा स्क्वायर बनाना चाहूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, अगर हम एक छोटा स्क्वायर बनाना चाहें तो देखो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम छोटा स्क्वायर बनाना चाहें बेटा तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, छोटा स्क्वायर इसके अंदर ऐसे। ठीक है, मैंने एक छोटा स्क्वायर बना दिया और अगर मैं एक और बनाना चाहूँ इसके साइड में जस्ट सेम लेंथ और उसका, तो ये रहा, एंड सो ऑन। मैं इतने कितने भी स्क्वायर मैं और बना सकती हूँ। ठीक है, अब स्क्वायर के लिए क्या चीज़ होगा बेटा, स्क्वायर के लिए एक प्रॉपर्टी ये है कि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होगी। यानी कि अगर यहाँ पर ये जो है इसका मेजरमेंट a है तो इसका मेजरमेंट भी a होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी a होगा इसका मेजरमेंट, यहाँ पर भी a, ये सारी साइड जो है आपके पास में a मिलेंगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि आपके पास कंप्लीट एक रेक्टेंगुलर फिगर था और आपको उसको छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट करना है। ठीक है, इसका मतलब आप चाहते हैं कि आप ऐसे ए करके नंबर ऑफ टाइम्स ए रिपीट करते जाएं और ब्रेड्थ में भी आप यही करना चाहते हैं। हमें नहीं पता ए कितनी बार रिपीट होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, और ए का वैल्यू क्या होगा ये भी नहीं पता, तो बेटा कैसे फाइंड करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ए जो है वो रिपीट हो के, ठीक है, कुछ भी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होके वो क्या बनेगा, 128 बनेगा। ठीक है, और इस तरफ भी a जो है कुछ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होकर 72 बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि a जो है, a is a factor of both 128 and 72। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि जो a है वो दोनों का फैक्टर बनेगा। ठीक है, क्योंकि फैक्टर क्यों बनेगा बेटा, देखो इसको 12 मल्टीप्लाई करके हमें वो मिल रहा है ना, तो उसके फैक्टर्स ही तो होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करके हमें फाइनल आंसर मिल जाता है।
ठीक है। तो 128 का फैक्टर है a एंड 72 का भी फैक्टर है a, तो दोनों का फैक्टर है। इसका मतलब क्या, a कॉमन फैक्टर हो गया क्या? यस, a क्या हो गया हमारे पास में, कॉमन फैक्टर। वेरी गुड। ऑल्सो टेल मी, जो a का वैल्यू है वो क्या हमें मैक्सिमम चाहिए क्या? यस, a का वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए, यानी कि हाईएस्ट चाहिए। तो क्या हमें इस क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात नहीं कर रहे क्या हम लोग? यस, हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ही बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, HCF। तो हमें यहाँ पर जो A है बेटा, A क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसका HCF है? 72 एंड 128 का। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? HCF निकालना है, HCF ऑफ 72 एंड 128। HCF निकालना आप सभी को आता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 72 और 128 के अलग अलग फैक्टर्स निकाल सकते हैं और फिर उनके फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको उनकी लीस्ट कॉमन पावर से रेज करना है, उससे आपका HCF आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 72 जो है हमारे पास इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, और 128 जो है हमारे पास में इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 7, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे HCF की बात करूँ तो HCF क्या आएगा बेटा, 2 का क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो हमारा जो स्क्वायर होगा वो 8/8 की मेजरमेंट का होगा, ठीक है। और HCF फाइंड करने का एक और तरीका क्या होता है बच्चों, ऐसे कर लो 72 एंड 128 कॉमन इनका कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप 2 लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे आ जाएगा 36 एंड यहाँ पे 64 एंड देन अगेन बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 18 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 32 एंड देन अगेन 2, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 16। इसके बाद आप कॉमन फैक्टर आपके पास नहीं है कोई भी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 8। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर कौन सा है हमारा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेक्टेंगल हैज लेंथ 9 टाइम्स इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है हमारे पास में वो 9 टाइम्स है उसकी विड्थ के, ठीक है। तो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसकी लेंथ जो वो बता रहे हैं वो बोल रहे हैं 9 टाइम इट्स विड्थ। तो हमने विड्थ की हमने क्या मान लिया, लेट, विड्थ की जो है वो x मान ली हमने, ठीक है। विड्थ को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अगर विड्थ हमारे पास x है और 9 टाइम्स क्या है हमारे पास में, लेंथ, तो क्या लेंथ हमारी 9x हो गई क्या? यस, तो ये भी 9x एंड दिस इज x, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगल हो गया। द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर का रेशियो, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या निकलेगा हमारे पास? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ एंड दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 9x एंड दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 10x विच इज इक्वल्स टू 20x। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमने आंसर निकाल लिया। द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर, रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ सेम एरिया, उस इसका रेशियो उसके साथ निकालना है उस स्क्वायर के साथ में जिसका एरिया सेम हो। यानी कि हमसे ये बोल रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर और है और उसका इसका एरिया सेम है, ठीक है। एक स्क्वायर है बेटा हमारे पास, एक और स्क्वायर है हमारे पास, और इस स्क्वायर का और इसका दोनों का एरिया सेम है, हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल इंटू बी। और स्क्वायर के लिए बात करें तो मैं यहाँ पर स्क्वायर में बोल देती हूँ कि स्क्वायर की जो साइड है उसका हमें एस बोल देते हैं बेटा, ठीक है, एस। तो स्क्वायर के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो यू गेट एस इंटू एस। तो एल इंटू बी इज इक्वल्स टू एस इंटू एस। एल इंटू बी, here we have 9x into x equals to s into s, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारे पास 9x स्क्वायर इक्वल्स टू s स्क्वायर, ठीक है। और बेटा अगर इसको हम सॉल्व करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, तो हमारे पास s का वैल्यू क्या आ जाता है, 3x, ठीक है। x का वैल्यू आ जाता है, इसका वैल्यू हमारा 3x, ठीक है। s मिल गया हमें 3x,
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x, यहाँ पर भी 3x, ये भी 3x एंड दिस इज ऑल्सो 3x। ठीक है, तो इसका रेशियो बोला था उन्होंने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के साथ में, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू एस, और एस का वैल्यू हमने क्या निकाला था अभी 3x, 4 इंटू 3x एंड दिस इज इक्वल्स टू 12x। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 20x अपॉन 12x। x से x कैंसिल बेटा, एंड आप 4 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 अपॉन 3, 5 अपॉन 3 इज द राइट आंसर। चेक करिए आप लोग ऑप्शंस में 5:3। तो बेटा देखो 5 अपॉन 3 इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग 5:3, दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, 5:3। ठीक है, चलो ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम एक स्क्वायर ड्रॉ करें और उसकी साइड 1 सेंटीमीटर, ठीक है, देखो ये हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, और इसकी साइड क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर। फाइन, उसके बाद हमारे पास क्या है, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। हमारे पास डायगोनल्स हैं 2 और उनके इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो है O। ठीक है, मैं डायगोनल ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर, ये और एक यहाँ से ये। ठीक है, और इनको क्या बोला है उन्होंने कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने O नेम दे दिया। ठीक है, दोनों डायगोनल्स हो गई। P इज द मिड पॉइंट ऑफ OB। बेटा इसको हमें ABCD नाम भी तो देना था, दे देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD। और क्या बोला था इन्होंने, मिड पॉइंट ऑफ OB इज P। OB का मिड पॉइंट यहाँ पे मान लो कहीं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में P। ठीक है, इसको हमने बोल दिया P, OB के मिड पॉइंट को। ठीक है, इसको बोल दिया P। देन द लेंथ ऑफ AP स्क्वायर इन सेंटीमीटर्स। हमें AP स्क्वायर का लेंथ निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हमें AP स्क्वायर का लेंथ निकालना है, तो AP हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, सोचो आप लोग। ठीक है, AP फाइंड आउट हमें कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर हमें स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है हमारे पास में, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हमारे पास में देखो, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या होती हैं कि हमारे पास जो सारे एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट होता है 90 डिग्रीज। ठीक है, सारे एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्रीज। ऑल्सो जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। ठीक है, तो डायगोनल्स जहाँ बाइसेक्ट कर रही हैं वहां पर भी सारे एंगल्स जो हैं 90 डिग्रीज के बनते हैं, और वो सब आपस में एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि इसके अंदर BO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू OA होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सारे एंगल्स जो है 90 डिग्रीज के हैं। ठीक है, और हमारे पास ये एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं चारों। ठीक है, और क्या है हमारे पास में, ये जो है इसके इक्वल है एंड इसके इक्वल है एंड इसके इक्वल है, कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट भी हमारा इक्वल है। ठीक है, ये चारों आपस में इक्वल है। ठीक है, और हमें पता है कि P मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि PB इक्वल्स टू OP, ये भी हमें पता है। ठीक है, यहाँ तक हम जानते हैं। चलो, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम लोगों को अगर दिख रहा है कि AP तक हमें पहुँचना है, AP तक हमें पहुँचने के लिए हमें ट्राइंगल AOP तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, ट्राइंगल AOP तक पहुँचना पड़ेगा, और इसके अंदर हमारे कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट समझा देती हूँ। देखो, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है कि इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो
तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है एंड दिस इज ABC। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूस, ये होता है हमारा बेस एंड दिस इज हाइट, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड हाइट, ठीक है, उन दोनों के स्क्वायर्स का सम जो होता है वो हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू h यानी कि हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू कैपिटल H का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने यहाँ पे कैपिटल H हाइट के लिए यूज किया है, स्मॉल h हाइपोटेन्यूस के लिए यूज किया है एंड कैपिटल B बेस के लिए यूज किया है, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर इसको ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बताना चाहूँ तो हम बोल सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इनका सम क्या है हमारे पास में, इनका सम जो होता है स्क्वायर्स का वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये है हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम थी हमारे पास कंप्लीट। तो पाइथागोरस थ्योरम ने हमें क्या बताया कि आपके पास जो है वो जो सम है वो क्या होता है आपके पास में, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का जो सम है वो बराबर होता है आपके पास में हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये थी पाइथागोरस थ्योरम। तो नेक्स्ट देखो, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज बेटा 2-3 बार आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ट्राइंगल ABC की, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर is equals to 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2, ठीक है। तो बेटा AC का वैल्यू क्या आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, AC इक्वल्स टू अंडर रूट 2, AC आ गया, ठीक है। एंड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ OA, OA इज इक्वल्स टू AC अपॉन 2, इट मीन्स OA इज इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन 2, ठीक है। एंड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ OP, OP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ OB, ये बेटा OB के बराबर हो गया एंड OP इज इक्वल्स टू OB अपॉन 2, OB तो मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है तो OB अपॉन 2, और OB क्या था रूट 2/2 अपॉन 2 यानी कि रूट 2 अपॉन 4। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, OA मिल गया एंड OP मिल गया, यू गॉट OA एंड OP। तो नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOP इज राइट एंगल्ड एट O, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं किसमें, इन ट्राइंगल AOP, इसके अंदर अप्लाई करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें पता चलेगा कि AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर एंड OA एंड OP का वैल्यू क्या था, OA का वैल्यू था बेटा रूट 2 अपॉन 2, OP का वैल्यू था रूट 2 अपॉन 4। इन दोनों का स्क्वायर करना है हमें और इनको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2/4, 2/16 and by adding these two you will get 8 plus 2 upon 16 after taking LCM, this is equals to 10 upon 16 and this is equals to 5 upon 8, ठीक है। ये क्या मिल गया हमें यहाँ पर 5 upon 8 AP का स्क्वायर, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में हमें AP का स्क्वायर ही निकालना था क्या बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, देन द लेंथ ऑफ AP स्क्वायर इन सेंटीमीटर्स, AP स्क्वायर ही निकालना था एंड वी गॉट द आंसर 5/8, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन D is correct. Next question, we have 3 cubes of metal whose edges are 3 centimeters, 4 centimeter and 5 centimeter. हमारे पास 3 क्यूब्स हैं जिनका हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है, 3, 4 एंड 5, और उनको हमने मेल्ट कर दिया और हमने उनको एक सिंगल क्यूब बना दिया, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया एक 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, और फिर एक 4 का और फिर एक 5 का हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो
तो बेटा मैंने आपको यहाँ पे 3 क्यूब्स बना के दिखा दिए हैं, ठीक है, और इन तीनों क्यूब्स में हमारे पास क्या है, इनका हमारे पास में गिवन है इनका साइड, ठीक है, इनकी साइड गिवन है हमारे पास में ओके फाइन, ठीक है, हमारे पास में 3 क्यूब्स हैं और इनकी हमें साइड्स गिवन है। फर्स्ट वाले की है 3, फिर 4 एंड 5, ठीक है, इसकी 3 है, इसकी 4 है और इसकी 5 है, ठीक है, और इन तीनों को इन्होंने क्या किया, मेल्ट कर दिया बेटा। मेल्ट करना मतलब पिघलाना, यानी कि तीनों को मेल्ट करके फिर बोला इन्होंने कि हम इन तीनों से एक और क्यूब बनाएंगे, इन तीनों से एक और क्यूब बनाएंगे, तीनों को मेल्ट करने के बाद में। तो आप ये बताओ कि मेल्ट करने के बाद में क्यूब बन रहा होगा तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो सेम रहेगी, वॉल्यूम, ठीक है, द वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो अगर मैं फर्स्ट क्यूब के वॉल्यूम का नाम बोल दूं V1, सेकेंड क्यूब का वॉल्यूम बोल दूं V2 एंड थर्ड क्यूब का वॉल्यूम बोल दूं V3, ठीक है, और हम फाइनल जो क्यूब बना उसका वॉल्यूम हम बोल देते हैं कैपिटल V, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कैपिटल V का क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल V इन तीनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है, कैपिटल V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और हमारे पास हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, साइड क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, ठीक है, इसका निकलेगा 3 का क्यूब, इसका होगा बेटा 4 का क्यूब और इसका होगा हमारे पास में 5 का क्यूब। ये हमारे पास में V1 V2 V3 की वैल्यूज होंगी। 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 दैट इज 27, ठीक है, 27, और 4 क्यूब जो होता है हमारे पास में होता है 64, ठीक है, एंड 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 125, ठीक है। अगर आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो आपके पास में फाइनल आंसर आता है 216। तो V का आंसर हमारे पास में फाइनल क्या आ गया, 216, ठीक है। ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ गया है किसका, V का। लेकिन हमारे पास तो अभी वॉल्यूम आया है, ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम आया है, तो वॉल्यूम के साथ में हमें क्या करना है, अब हमें तो पर क्या चाहिए था, साइड चाहिए था, ठीक है। तो अगर हमें साइड चाहिए था तो देखो हम साइड कैसे निकालेंगे, हम साइड कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये था हमारे पास में, और हमें अब निकालनी है साइड, ठीक है, साइड निकालना है किसका, जो न्यू जो हमारे पास में क्यूब बना है उसका साइड निकालना है, ठीक है। तो न्यू क्यूब जो है उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल्स टू 216। तो ये मान लो, लेट अस सपोज एज ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल्स टू x, ठीक है, इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, x क्यूब इक्वल्स टू 216। और बेटा किसका क्यूब होता है 216, 6 का, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स। ये क्वेश्चन में हमें सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 6 सेंटीमीटर। Moving on to the next question. In this question, in the adjoining figure, there are parallel lines which are marked by the arrows, and we need to find the value of x. ठीक है बेटा, आपको इस कर्व से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, जो नीचे वाली लाइन है हमारे पास में, वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, ये जो लाइन है बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, फिर जो ये कर्व में हुई है, तो x का जो मेजरमेंट है वो आपको इस एंगल के थ्रू ही निकालना है, ठीक है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है उस कर्व से, उसको तो बेटा आप एकदम भूल जाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर देखें, तो मैं अगर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ, ये 90 डिग्री से बेटा दिख ही रहा है, तो ये जो एंगल रिमेनिंग है, यहाँ पर जो एंगल रह गया, इस एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये एंगल का मेजरमेंट क्या होगा बेटा, इसको अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर a, इसको मैंने बोल दिया स्मॉल a, तो हम बोल सकते हैं स्मॉल a प्लस 70 डिग्रीज प्लस 80 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल 360। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ से बेटा स्मॉल a का वैल्यू देखो क्या निकलेगा, ठीक है, इनको आप लोग ऐड कर लीजिए, क्या होगा, देखो 90, 70, 160 एंड 80, 240, 240 हो जाके माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास में 360 डिग्री माइनस 240 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा 120।
ठीक है, ए का वैल्यू आ गया हमारे पास में 120 डिग्रीज। ठीक है, ए 120 आ गया। बेटा अगर ए 120 आ गया और मैं अगर यहाँ पे लाइंस को एक्सटेंड करूँ, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर देती हूँ तो देखो आप लोग क्या होता है, ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं इस लाइन को। ठीक है, और यहाँ से इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो 120 जो है हमारा 120 वो सेम जो है वो हमारा कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पर 120 का। बेटा अच्छा ऐसे करते हैं हम लोग, इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड कर लेते हैं। ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये एंगल का मेजरमेंट क्या होगा 60 डिग्री। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है बेटा तो यहाँ से देखो इसको मैं एक्सटेंड कर दूं अगर, ठीक है, उधर 60 डिग्री है, ये भी क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री। एंड देन x एंड दिस एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया। हमने पहले प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक यूज किया, उसके थ्रू हमने a का वैल्यू फाइंड किया, उसके बाद मैंने इसका लीनियर पेयर से यहाँ वाला एंगल फाइंड किया, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पहुंचे, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पहुंचे, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पहुंचे। ठीक है, और यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ x मिल गई, दैट इज 60 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।